السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناولز کی دنیا، جن میں ہم آپ کو طرح طرح کے ناولز پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارے ناولز کی قسط نمبر 3 ہے قسمت سے ہاری میں عزیز بلوچہ ثابت۔ آئیے اپنے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کیبن میں داخل ہوئی تو رانا صاحب رائل بلو کلر کے سوتے ملبوس سے خاکی پڑتے بالوں اور شیف کو ترتیب سے تراشا ہوا تھا۔ پورٹ کو کرسی کے پشت پر آویزاں کیا ہوا تھا اور شرٹ کی آستین کوہنیوں تک مڑے ہوئے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بلکونی کے پاس کھڑے باہر سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ نگار بیگم کی ہیل کی آواز سن کر وہ بنا مڑے گویا ہو گئے۔ ویلکم نگار بیگم، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نظریں ابھی بھی چلتی شاہد پر جمی تھی۔ نگار بیگم دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی اور بزنس وومن کا انداز اپناتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ بنائی۔ جی یار، نوٹ ایٹ آل رانا صاحب، ویسے شادی جیسے رشتے کی باتیں تو گھر پر کی جاتی ہیں، پر ہر کوئی بات دفتر میں ہی صحیح نہیں ہوتی۔ رانا صاحب، آپ بالکل فکر مت کیجیے، آپ کا جو بھی مطالبہ ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو جتنا جہیز چاہیے۔ نگار بیگم اپنی خوشامد کا سلسلہ شروع کیا، لیکن بیچ میں رانا صاحب کو اپنی طرف مڑتے دیکھ کر ان کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ رانا صاحب ہاتھ پیچھے باندھتے قدم قدم چلتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ کو جتنا جہیز چاہیے میں دے دوں گی، آخر اکلوتی بیٹی ہے میری۔ نگار بیگم نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ رانا صاحب راکنگ چیئر کو جلاتے ہوئے فخری انداز میں مسکرائے اور آبرو اٹھا کر سامنے لمبے میز پر پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ آئے بیٹھیے، سیٹ رکھیں، کھڑی کیوں ہیں؟ انہوں نے سیدھے ہوتے ہوئے کوہنیوں میز پر ٹکائی۔ نگار بیگم تیزی سے چل کر آئی اور نشت سنبھال لی، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رانا صاحب کے جواب کی منتظر ہوئی۔ مجھے آپ سے جہیز نہیں چاہیے نگار بیگم، مگر شادی کے لیے مگر ایک شرط ہے۔ رانا صاحب بنا کوئی تمہید باندھے اپنے مطالبے کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کو نگار بیگم کے چہرے پر ایک رنگ چڑھتا، دوسرتا اور دوسرا اترتا صاف چل رہا تھا۔ نگار بیگم نے اپنے اضطراب کو قابو رکھنے کے لیے گود میں رکھے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی اور چہرہ تاثر رانا صاحب کے سامنے کیا ہوا غور سے ان کے کلمات سن رہی تھی۔ نگار بیگم، ہمیں جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا سب کچھ ران کا ہی ہے، وہ چاہے نور کے لیے پورا شاپنگ مال خرید لے۔ لیکن رانا صاحب کو اچانک یاد آیا اور نگار بیگم کی خاطرداری کی۔ انہوں نے اپنی آواز میں دوستانہ بناتے ہوئے پوچھا، بائی دا وے کیا لیں گی آپ؟ چائے، کافی، ٹھنڈا؟ رانا صاحب انٹرکام دبانے لگے تھے کہ نگار بیگم نے انہیں کوئی بھی تکلف نہ کرنے سے منع کر دیا۔ پھر مسکراہٹ بناتے ہوئے آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ رانا صاحب ان کی مرضی کا احترام کرتے ہوئے انٹرکام سے ہاتھ ہٹایا اور اپنے بڑے پانی کے گلاس سے ڈھکن ہٹا کر گلاس نگار بیگم کے آگے رکھ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر سے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ نگار بیگم، میں اس سے شادی کے لیے تب ہی راضی ہوں گا جب آپ کرن کی شادی مجھ سے کروا دیں گے۔ رانا صاحب کے آخری جملوں کا ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا اور آنکھیں نگار بیگم پر ہی جمائے رکھی۔ ٹیک لگائی، پھر سے کرسی چلانے لگے۔ ایک پل نگار بیگم سوچ کر اپنا گلا سوکھتی ہوئی محسوس کرتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں لرزش ہونے لگی۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا، لوگوں پہ اے سی کے ٹھنڈے کمرے میں بھی ان کو پسینہ آنے لگا۔ لیکن رانا صاحب، کرن میری سگی بیٹی ناز ہے، ان لوگ بیٹی جیسے ہی ہے، نور سے 1-2 سال بڑی ہوگی۔ اور آخری شادی گھر گئے میں وضاحت کرنا شروع کر دی، جس پر رانا صاحب نے آبرو تن ہو کر کہا اور جبڑے سخت کر لیے۔ نگار بیگم چپ ہو گئی اور تیلی مسکراتے ہوئے پلکیں چپکائیں۔ رانا صاحب ان کی وضاحت سے محظوظ ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پار اپنے ساری قدرت کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ آپ کو کرن کی اتنی ہمدردی کب سے ہونے لگی؟ کل تک تو آپ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی رہی تھی اور آج اس کے حق میں بول رہی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کے مرحوم شوہر نے اپنی وصیت میں اس کی پڑھائی اور شادی ہونے تک ایک رقم لکھی ہے، تو اس شادی سے آپ کے پیسے بچ جائیں گے، آپ کو اس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، جو آج تک مجبوری کے تحت کرتی رہی ہیں۔ رانا صاحب قدم قدم چلتے اپنی بات جاری رکھے ہوئے نگار بیگم کی طرف آئے اور استہزیہ مسکرا کر نگار بیگم کو دیکھا۔ نگار بیگم اپنے بارے میں رانا صاحب کے منہ سے اتنا سچ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں تو ان سے آج سے پہلے صرف ایک دفعہ ملی ہوں، پھر یہ اتنا سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے حیرت سے دل ہی دل میں سوچا۔ رانا صاحب ان کی کرسی پر جھکے اور سرد مہری سنجیدہ ہو گئے۔ میں آپ کی سوچ سے بہت
पर चीज़ हूँ नगार बेगम, मुझे आपके और आपके ख़ानदान के बारे में आपसे ज़्यादा मालूमात है, इसलिए दोबारा कभी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उन्होंने संजीदगी से कहा और वापस सीधे हो गए। उनके सीधे होते ही नगार बेगम के पेशानी से पसीना साफ किया और खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए इस्तेहज़िया हंसी और हाथ को उठाकर हवा में लहराया। वो तो पहले की बात थी राना साहब, अब तो मैं उसे तस्लीम कर लिया है, मुझे उसकी आदत हो गई है, मेरी सारी खिदमत गुजारी वही करती है। नगार बेगम ने लड़खड़ाती ज़बान से बसात दी। राना साहब वापस आकर अपने चेयर पर बैठ गए। नगार बेगम कभी चेक करो देखती है, कभी राना साहब के तासर सरापे को, और राना साहब ने सिगरेट निकाली और होटल में दबाकर जलाई। खाली चेक है, अपनी मर्जी की रकम निकली। किरण की कीमत। उन्होंने अपने हाथ मेज पर जमाए सिगरेट पकड़े हुए उंगलियों से चेक की तरफ इशारा किया और फिर कुछ भरने लगी। नगार बेगम अपनी साकत में बैठी हुई थी। राना साहब आधे से ज्यादा खत्म की हुई बाकी मादा सिबरा बजाई और हाथ झाड़ते हुए फिर से गोया हुए। सोच रहे नगार बेगम, मेरे एक इजारे पर रोहान कभी नूर की जरिए मुड़कर भी नहीं देखेगा, जिसकी मिसाल तो इतने दिनों से देख रही हूँ। मैंने उसे नूर से रब्ता करने के लिए मना किया हुआ है। राना साहब ने फकरी अंदाज में आबरू उचकाए। फैसला आप पर है। रोहान के लिए तो मुझे नूर जैसी तस्वीरें मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने नूर के लिए रोहान जैसा लड़का कभी भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बात करते करते कलमदान से कलम निकाला और इमरान बेगम को पेश किया। नगार बेगम शीशा पॉइंट में मुब्तला हो गई। वो नूर की खुशियां तो चाहती थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि किरण को आंधे को हैंडे। राना साहब इनके लिए कोई और ऑप्शन दस्तरस में नहीं छोड़ा था, इसलिए आगे कोई और झुकते हुए राना साहब हाथ से कलम उठा लिया। लर्जते हाथों से झुककर चेक पर रकम दर्ज करना शुरू की। राना साहब फीकी नजरों से उन्हें देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने आखिरी हिंसा लिखा। राना साहब चेक उनके सामने से खींच लिया। ओह थैंक यू सो मच नगार बेगम, ये चेक मैं तभी आपको दूंगा जब आप किरण को राजी कर लेंगी। अब इसे कैसे कायल करना है ये आपका काम है। उन्होंने चेक आपस अपने दराज में रख कर लॉक लगा लिया। राना साहब खड़े होकर तो नगार बेगम के साथ खड़ी होगी। इससे पहले नगार बेगम कुछ कहते ही राना साहब ने इंटर पर सेक्रेटरी को मुखातिब लिया। सेम ड्राइवर से कहो नगार बेगम को अंदर वापस छोड़ा। वायरलेस कान से लगाए। ने पुरानी अंदाज में मुस्कुराकर नगार बेगम को देखा। सेक्रेटरी ओके सर कहती उनका हुक्म बजा लाई और राना साहब मेज के ओट से घूम कर नगार बेगम के सामने आए और मुसाहिफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नगार बेगम फीका मुस्कुराई और उनका हाथ थामकर जंबश दी। आप वाकया एक काबिल बिजनेस वूमन है, आपके साथ डील करके अच्छा लगा। राना साहब ने हाथ चढ़ाते हुए उनकी तारीफ कर दी। नगार बेगम फिर से अपना गुजर वूमन का अंदाज अपनाते हुए उनकी तरफ तारीफ से मुस्कुराई हुई। जी थैंक यू राना साहब, मैं जल्द आपको खुशखबरी सुना दूंगी। वो दोनों चलते हुए कैबिन से सर तक आए। नगार बेगम इस बात पर राना साहब दिल खोल कर लताबंदोज हुए और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मुझे आपकी कॉल का इंतजार है, उन्होंने सर को काम देते हुए कहा। नगार बेगम को हर जिनिश देती कैबिन से बाहर आकर सेक्रेटरी के हमरा को ड्राइवर में चलने लगे। राना साहब उनको अलविदा करते हैं, वापस कैबिन का दरवाजा बंद किया। सोचते वापस अपने चेयर पर बैठे। सर कुर्सी की पोस्ट पर टिकाकर छत को तकते हुए चेयर जलाने लगे। नगार बेगम इस वक्त घर पहुंची तो घर खाली पड़ा था। नूर और किरण यूनिवर्सिटी गई हुई थी। वह किरण को मनाने का लाया और सोचते अपने कमरे में चली गई। नूर और किरण घर बैठी तो बुझे चेहरे के साथ अपने कमरे में चली गई और किरण जल्दी से कपड़े तब्दील करके किचन में खाना बनाने लगी। 1.5 घंटा बाद उसने खाना गया तो नूर नीचे आई और चच्ची के कमरे से बाहर आई। नूर को तो उसने कमरे में ही खाना दे दिया। चच्ची को खुद देखने आ गई। उसने आस्था से बिना आवाज के चच्ची का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो चच्ची को उठा हुआ पाया तो तहजीब से चलते हुए अंदर दाखिल हुई। चच्ची खाना खाने बाहर नहीं आई। आपकी तबीयत ठीक है? अगर तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को बुला दो या आप कहें तो सूप बना दो। इस नरम लहजे में चच्ची के पहलू में बैठ गई। नगार बेगम ने शुद्ध तासर बनाया और नकली आंसू छुपाते भराई आवाज में जवाब दिया, नहीं बेटा, अभी तबीयत किसी दवाई और सबसे ठीक नहीं होगी। नगार बेगम के दिल में गर्भता होने का अदाकारी करते हुए नरमी से कहा। किरण उनका यह रवैया देखकर हैरान और परेशान हो गई। आज से पहले चच्ची का अपनी तरफ ऐसा रवैया
नहीं देखा था, क्या हुआ आपको चच्ची, सब ठीक तो है ना? उसे फिक्र होने लगी। नगार बेगम ने अपनी अदाकारी के जोहर दिखा, एक गिली सांस अंदर खींची और बढ़ते हुए नजरें नीचे कर ली। एक बहुत बड़ी आजमाइश है मुझ पर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे कहूं। उन्होंने किरण का हाथ अपने हाथ में लिया। इनके ड्रामे से अनजान किरण को नगार बेगम पर तरस आने लगा। अचानक से वो इससे बेबस नजर आई। क्या बात है चच्ची, मुझसे कहिए, मैं अभी का मदद कर सकती हूँ। किरण ने हाथ पर हाथ रखकर दिलासा देने वाले अंदाज में कहा। नगार बेगम को शिकार में फंसता हुआ महसूस हुआ। अपनी मुस्कुराहट दबाए उन्होंने मगरमच्छ के आंसू फिर से बहाने शुरू कर दिए। अब तो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो मेरी बेटी। तुम जानती हो रूहान नूर से बात नहीं कर रहा, वो घुमा फिरा कर बातें कर रही थी। वो किरण वो चच्ची की अचानक बदले हुए अंदाज से खटक खटक हो रही थी। आप इसलिए इतनी परेशान है, फिक्र मत कीजिए चच्ची, मैं नूर को समझाती हूँ और मुझे यकीन है कि रूहान जल्दी वापस आएगा। उसने चच्ची को तसल्ली देते हुए कहा। नगार बेगम उसकी मासूमियत पर सर हिला दिया। नहीं बेटा, रूहान की दौड़ राणा साहब के हाथ में है। जब तक होना चाहे रूहान कभी भी वापस नहीं आएगा। उन्होंने मेकअप से ढके चेहरे पर से लड़खड़ाते आंसू साफ करते हुए कहा। किरण आप भी इस मुनक्किद समझने से कासिर संजीदगी से चच्ची को देख रही थी। इसे हैरानी से देखकर नगार बेगम सीधे राणा साहब के दफ्तर में मिलने पर बात आई। तुम्हें पता है, आज मैं राणा साहब के दफ्तर मिलने गई थी। उन्होंने रूहान को हमसे रब्ता करने से रोका है। नगार बेगम ने अफसोस से सर झटकते हुए कहा। किरण इस बात पर शॉक्ड हो गई। किया पर क्यों? उसके आगे वो कुछ कह ना सकी। वो पूछना चाहती थी कि उन्होंने रिश्ता करने से मना क्यों किया है, लेकिन पूछने की हिम्मत ना कर सकी। इस रिश्ते के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। नगार बेगम ने पलकें उठाकर किरण की तरफ देखा और बताया। वो बिल्कुल साकत बैठे थे, सवाली नजरों में उन्हें देख रही थी। उनकी शर्त है कि वो मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। नगार बेगम ने झूठी बेबसी से सर पकड़ कर हिलाया। किरण उनकी हरकत से बेचैन हो रही थी। वो आगे हुई और चच्ची के कंधे पर हाथ रखा। कैसी शर्त चच्ची, बताए ना, इस धड़कते दिल के साथ पूछा। आंखें बिना चुपकाए चच्ची पर मरकूज की थी। बेटा, राणा साहब की शर्त है कि वो रूहान और नूर की शादी तभी करवाएंगे जब तुम उनसे शादी करोगी। निगार बेगम ने संजीदगी से कहा। निगार बेगम अब की बार जो गोया हुई तो उन किरण के पैरों तले जमीन निकल गई। सर पर आसमान टूट पड़ा था। उनके हाथों में अपना खींच कर उनके बालों से उठ खड़ी हो गई। इसे अपने कानों से चच्ची के अल्फाज पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कदम कदम चलती नफी में सारे हिलाते पीछे हो गई। निगार बेगम ने उसे पीछे जाते हुए देखा तो झट से खड़ी हो गई। किरण को बात से पकड़ लिया। यही बिल्कुल ऐसा ही रद्द-ए-अमल था। मेरा भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर बहुत सख्त हैं। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। चच्ची किरण को पकड़कर अपने बेड पर बिठाया और फिर भी साथ बैठकर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। किरण का दिल भर आने लगा। वहां से भाग जाने का इरादा किया। उसकी आगे कुछ सुनना, कुछ नहीं जानना चाहती थी। उसने निगार बेगम की तरतीब करदा प्लानिंग समझ में गई और राणा साहब के साथ पहले ही सब तय करके आई थी। वो बस किरण को फुसला रही थी। मैं चाहती हूँ कि मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। निगार बेगम ने अपनी चेक वाली बात गोल काटी और अब वो इसे नूर के नाम से ब्लैकमेल कर रही थी। किरण जब मुठियां मिंचे बिना आवाज सिसक रही थी। अपने आंसू को बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी और रिवायत में दम काट रही थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, पर मैं अपने लिए थोड़ी कुछ मांग रही हूँ। मैं मजबूर हूँ। नूर का सोच कर देखो, सिर्फ 4 दिन वहाँ से दूर रहने से उसकी ये हालत होगी तो जिंदगी पर कैसे रह पाएगी। निगार बेगम ने उसके सर को सहलाते हुए नरमी से कहा। किरण अभी भी अपनी बर्बादी पर खामोशी तमाशाई बनी बैठी थी। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, तुमसे अच्छी से सोचकर फैसला करो, याद करो तेरे मन चच्चा तुझ पर कितने एहसानात हैं। फिर मुल्क ने हमेशा पुरस्कार ने तुम्हारा सोचा है। चच्चे ने ब्लैक मेलिंग की आखिरी हद पार कर दी। प्लीज मेरे किए की सजा तो मेरे बेटे को मत दो। निगार बेगम ने कहते हुए हाथ जोड़े। किरण ने फौरन उनके हाथ पकड़ लिए और 2 आंसू टूट कर उसका सांप पर गिर गए। प्लीज चच्ची, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए। इसमें बहते आंखों पर जाने के साथ और वहां से उठ गई। नूर की खुशियां अपने जगह, लेकिन मेरी भी कोई जिंदगी है। उसके कमरे से निकलने के बाद निगार बेगम ने जान छूटने वाली अंदाज में आंख उचकाते हुए एक लंबी सांस ली। आंखें पोंछ कर निचली आंसू साफ किए और
फिर ऊपर करके नींद दराज होकर बैठ गई। वो अपना काम कर चुकी थी। उन्होंने किरण को दिखती रग पर हाथ रख दिया, इसलिए तसल्ली से अंबर जाकर देखने लगी। मैंने सोफे से ऐसे ही सीन था कि किरण राजी हो जाएगी। वो डगमगाते अपने कमरे में आई और दरवाजा लॉक करके दरवाजे पर ही नीचे बैठ गई, घुटनों के गिर्द बाजू माइन करते हुए सर झुका दिया। माँ बाप तो इसे याद नहीं थे, इस वक्त सबसे ज्यादा अनस चाचू की याद आ रही थी। अगले दिन वो बेबसी से सर पकड़े सोचती रही। वो डगमगाते कदमों से अपने कमरे में आई और दरवाजा खोलकर दरवाजे के पीछे नीचे ही बैठ गई। माँ बाप तो इसे याद नहीं आ रहे थे, लेकिन चचा की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन वो बेबसी में सर पकड़े हुए सुनती रही कि इसका कोई हल निकाल सकती हो या नहीं। आखिर राना भाई किरण को क्यों पसंद करते थे? मैं उन्हें इम्प्रेस करने में नाकाम रही तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो ये बहुत बुरी खबर पहुंच गई। किरण यहाँ नूर से अपना दर्द बयान करते हुए आई थी, लेकिन नूर के आंसुओं के सामने वो कुछ न कर सकी। वो अपनी तकलीफ को सिर्फ नजर करती नूर को चुप करवाने लगी। नहीं नूर, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबसे बेस्ट हो, राणा साहब मान जाएंगे, तुम्हारी रोहान से शादी जरूर होगी। एक तुम्हारा ही तो आसरा है किरण, तुम ना होती तो मुझे कौन संभालता। ये रुफाज नूर ने कहे। सब किरण ने नूर के कंधे पर हाथ रखा और कहा सब ठीक हो जाएगा, और अपनी आवाज खाई में से आती हुई महसूस हो रही थी। किरण ने करब से आंखें बंद करके अपनी परेशानी दिल में फना कर दी। नूर को सुलाकर वो अपने कमरे में आई और काली जनीन के साथ अपने बेड पर लेट गई। बेड पर से उठकर वो खिड़की की जानिब आई, तारीक आसमान को देखा। आज चांद नहीं है, वो हल्के बादलों के वैसे सितारे में धुंधले नजर आ रहे थे। इसी तरह वो सर ऊपर उठाए अल्लाह से शिकायत करने लगी कि ऐसी जिंदगी क्यों दी है या अल्लाह मुझे। उसने हादसे में अपने वालिदैन की हमरा क्यों नहीं की। राणा साहब को याद करके उसका दिल टूटने लगा। दिन उससे उसे उस दिन की उनसे मुलाकात और टकराना याद आया, और उनकी ये शायद एकदम से राणा साहब से नफरत होने लगी। अपने जिंदगी कुर्बान की नूर की खुशियों की इंतखाब किया। उसके दिल में फिर से गिले शिकवे उभरने लगे। उसने सर झटक कर एक भरी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ली। खुद को नॉर्मल करने के बाद वो वापस आसमान को देखा और अल्लाह के बादल में नावीद बन पर मंजर की और आकर लेट गई।